नमस्कार एवरीवन, मैं हूँ सीए निशा शर्मा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि हर तरह की एंटरप्राइजेस पर एप्लीकेबल हो जाते हैं एंड irrespective of their turnover or nature of business but on the basis of commonality of income, expenses, assets or liabilities. Here I come up with a summarized video where we will be summing up the accounting standards. We will be having a crux of all the accounting standards, relevant accounting standards actually, and it is actually quite difficult to sum up all the accounting standards in one sentence or in few of the sentences, but I have made an attempt to do so. Hopefully we will be able to analyzing or will be able to understand all the accounting standards in that manner. So first we need to understand on the first place that why do we need to understand those accounting standards. This is due to the paragraph being inserted by ICAI in the guidance note prescribed for the format for non-corporate entities. So the first thing is this paragraph says the accounting standards will be mandatory from the respective date mentioned in the accounting standard. So accounting standard उसी दिन से effective हो जाते हैं, applicable हो जाते हैं जिस दिन से accounting standards बनाए गए हैं यानी वो prescribe किए गए हैं. The mandatory status of accounting standard implies that while discharging their attestation function, यहाँ पर auditor की बात की जा रही है, it will be the duty of the member of Institute of Chartered Accountants to examine whether the accounting standard is complied with in the presentation of financial statement covered by their audit. So on the first place, it talks about the responsibility of the management to comply with the accounting standard in preparation of financial statement. Okay. And on the second place, it talks about the responsibility and obligation on the auditor, on the chartered accountants, to check, to verify or to examine that whether those accounting standards have been complied with in preparation of financial statements. So basically in the event of any deviation from the accounting standard, it will be covering your qualification part, or you can say that reporting part. It will be their duty to make adequate disclosures in their audit report so that the users of financial statement may be aware of such deviation. So basically, if any of the accounting standards, if all of the accounting standards, or if any part of the accounting standards have not been opted by or complied with while preparing the financial statement, it will be the duty of the auditor to make a disclosure in the tax audit report or as a notes to the financial statement that these are the respective deviations and these are the respective omissions from accounting standards. So basically यहाँ पर बात की जा रही है that अगर आपके accounting standard किसी भी तरीके से follow नहीं किए गए, आधे अधूरे follow किए गए हैं, कोई चीज skip कर दी गई है जो material थी, तो आपको उसकी qualification अपनी tax audit report में mention करनी है. So basically हम यहाँ पर इस guidance note को दो portion में divide कर सकते हैं. First portion talks about the applicability of accounting standard, mandatory nature of accounting standards. Second portion is covering the format prescribed for non-corporate entities in preparation of financial statement. That second portion has been deferred. That second portion has become recommendatory, but the first portion, which covers the part of accounting standard that is still in existence, that has not been deferred. So let us understand that what these accounting standards says in a summarized form. Here I have made a presentation for you all to sum up the accounting standards in few of the sentences. So first we will be starting with AS 29 provisions, contingent liability and contingent assets. We all are aware about that what provisions are contingent liabilities, contingent assets क्या होते हैं. So we will not be diving into the definition of these terms, but we will be focusing on the emphasized crux of this AS. AS 29 कहता है that आपको provision create करने की requirement तब है जब तीन conditions आपकी fulfill होती हैं. पहली condition क्या है? That there is a present obligation arising out of past event, यानी कि current date पे जब आप वो provision बना रहे हैं या 31st March 2025 को जब आपको पता है that present obligation is there due to the past events, because आपने sale जो की है या business activities जो perform की थी वो आपने past में की थी, अभी आपके ऊपर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, मतलब कि लाइबिलिटी है. देयर मस्ट बी आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स. इसका क्या मतलब है? देयर शुड बी प्रोबेबिलिटी दैट अगर वो आप प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फुलफिल करते हैं तो आपके एंटरप्राइजेस में से आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा, यानी कि आप कुछ ना कुछ जो है वो पे करेंगे. इन सिंपलर वर्ड्स,
थर्ड थिंग इज रिलायबल एस्टिमेट, यानी कि जो अमाउंट है वो मेजरेबल होना चाहिए. देयर शुड बी एस्टिमेशन ऑफ द amount to be treated as present obligation. So basically here we are not talking about the accuracy of the amount, we are just talking about the reliable estimate of the amount which will be treated as present obligation on the enterprises part. तो आपको प्रोविजन तब क्रिएट करना है जिसकी बेसिक एग्जांपल हो सकती है प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, प्रोविजन फॉर करंट टैक्स एक्चुअली, बट प्रोविजन फॉर करंट टैक्स जो है वो एएस 29 कवर नहीं करता, उसके लिए एक सेपरेट एएस है जो अभी हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं. सेकेंड पोर्शन इज कंटीजेंट लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट्स. कंटीजेंट लाइबिलिटी का मतलब है दैट जो आपकी ऑब्लिगेशन अराइज होगी इन फ्यूचर दैट विल डिपेंड ऑन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ सर्टेन इवेंट्स, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया जाता है लिटिगेशन के केसेस. यानी कि अगर आपका आपके किसी सप्लायर्स या अपनी किसी भी पार्टी के साथ डिस्प्यूट चल रहा है एंड देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस कि आप उन केसेस में ईदर केस जीत सकते हैं या केस हार भी सकते हैं, तो इन सारी चीजों को एज अ फुटनोट आपको डिस्क्लोज करना है इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम कंटीजेंट लाइबिलिटी कहते हैं. यानी कि इट is not directly affecting our financial results या financial statements, but we need to disclose for the users of the financial statement to get better understanding that okay, if this event happens in the future then there will be need to release the funds in order to fulfill the present obligation. Again, contingent asset law of prudence is there that we can't uh, determine or anticipate profits, but we could anticipate losses. So contingent assets भी आप सिर्फ और सिर्फ तब ही disclose करेंगे only if inflow is probable. Here the word probable is used. Probable means when there are chances of 70 to 100% say. There is a range that अगर आप sure हैं, there is a certainty that इनफ्लो होगा ही होगा, तो आप इसको एज अ फुटनोट डिस्क्लोज करेंगे सो दैट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो एंटरप्राइजेस से बढ़ ना जाए और इस कंटीजेंट एसेट्स के बेसिस पे वो कोई डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस या कोई भी ऐसे डिसीजंस रिलेटेड टू एंटरप्राइजेस ना लें. तो इसलिए कंटीजेंट एसेट्स को हम बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस में डिस्क्लोज करते हैं. सो बेसिकली जो एएस 29 है वो आपको बताता है दैट अगर आपके बिजनेस का नेचर ऐसा है जिसमें प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप एएस 29 फॉलो नहीं करते हैं तो यू आर समहाउ एंड सम टाइम्स reducing the liabilities, you are sometimes increasing the financial result in form of profits. सो बेसिकली एएस 29 ये कहता है अगर आपकी ये तीन कंडीशंस फुलफिल हैं तो आपको अपनी बुक्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली प्रोविजनिंग क्रिएट करनी है. नेक्स्ट एएस 26 इंटेंजिबल एसेट्स, यानी कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, फार्मा कंपनी है जिसमें लाइसेंसेस और कॉपीराइट्स का काम ज्यादा होता है, तो उन केस में यू हैव टू कंप्लाई विद एएस 26 दैट इज इंटेंजिबल एसेट्स. सो बेसिकली इसमें नॉन मोनेटरी एसेट्स जिनका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है. सो इनिशियली इन एसेट्स को हम मेजर करते हैं एट कॉस्ट एंड आप जो इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते. और जो नॉन मोनेटरी एसेट्स हैं यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स हैं, हम उनके लिए वर्ड यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जनरली सारी एसेट्स के लिए, मेजर एसेट्स के लिए मतलब मेजॉरिटी ऑफ द एसेट्स के लिए जो टर्म डिफाइन की गई है दैट इज 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल तक आप उनको अमोर्टाइज करेंगे. एंड जहां पर आपको जरूरत पड़ेगी आप इम्पेयरमेंट उनकी टेस्ट करेंगे और उनकी वैल्यू को डिक्रीज करेंगे एज कंपेयर टू मार्केट वैल्यू. यहाँ पर एक जो मिसिंग है एएस दैट इज एएस 28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट का वो केस है. मेजॉरिटी ऑफ द नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस या स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करती हैं ड्यू टू द रीजन ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है दैट देयर शुड बी सम इंडिकेटर्स व्हिच विल बी indicating that okay, if you are carrying this asset at this value but the market value is somehow different, यानी कि आपकी जो कैरिंग अमाउंट है एसेट की जो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रही है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द रिकवरेबल अमाउंट, यानी जब आप उसको मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको अपनी एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करना है, दैट इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स. तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं कि इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर लेते हैं. इम्पेयरमेंट लॉस के लिए इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट हो जाता है और एसेट्स की वैल्यू हो जाती है क्रेडिट.
ओके, सो बेसिकली ये लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस पे यूज होता है व्हेन दे आर यूजिंग such assets which become obsolete due to technology, due to upgradation, due to change in law, due to change in statute, etc., etc. Various terms could be there, various factors could be there. So AS 28 impairment of asset could be applicable on all the enterprises, but practically this AS is not followed by many of the enterprises. Next we will be talking about AS 22. Again it is an important accounting standard, accounting for taxes on income. अब देखिए जो गाइडेंस नोट है आईसीएआई के लिए उसमें एक स्पेसिफाइड लिमिट प्रिस्क्राइब कर दी गई है, दैट इज आई थिंक 50 करोड़, जिसमें ये कहा गया है अगर आपकी एंटरप्राइजेस की टर्नओवर इज लेस देन 50 करोड़ देन यू डोंट नीड टू गो फॉर डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। आप करंट टैक्स की प्रोविजनिंग कीजिए, प्रोविजन फॉर करंट टैक्स बनाइए, उसको अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि पी एंड एल अकाउंट में दिखाइए एंड दैट्स इट। यानी कि अगर आपके एंटरप्राइजेस की टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है देन यू हैव टू गो फॉर डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज को क्रिएट कैसे करना है इसके लिए मेरे चैनल पर अलग से वीडियो अवेलेबल है। इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डीटीए और डीटीएल यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट वीडियो। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम ये कहता है दैट आपको करंट टैक्स की प्रोविजनिंग क्रिएट करनी है बिकॉज देयर विल बी मैचिंग कंसेप्ट। Next, AS 16 borrowing cost. Again, this accounting standard will be applicable on those enterprises जो कुछ ऐसी क्वालिफाइंग एसेट्स को बना रहे हैं विच टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि आपने लोन लिया बैंक से, लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है यानी कि बोरोइंग कॉस्ट इज देयर। बोरोइंग कॉस्ट की जो डिटेलिंग है वो इस AS 16 में दी गई है, दैट इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट भी इनकर्ड होगी एंड अदर कॉस्ट इन कनेक्शन विद बोरोइंग जैसे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस वगैरह हो जाते हैं। तो उन केसेस में टिल द डेट, उन केसेस में टिल द डेट आपकी जो एसेट्स है दैट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, क्वालिफाइंग एसेट्स जो कंप्लीट नहीं हुई है तब तक का जो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है या अदर कॉस्ट है दैट वुड बी कैपिटलाइज्ड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। लेकिन once your assets get completed, in that case after that period your cost will stop capitalizing and it will be treated as an expense। ये क्रक्स है AS 16 का जिसमें क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन अलग से दी गई है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम की जो एसेट है वो अलग से दी गई है डेफिनेशन। सो ये क्या कहता है, बोरिंग कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट शुड बी कैपिटलाइज्ड एंड अदर बोरिंग कॉस्ट विल बी एक्सपेंस्ड इन P&L अकाउंट। सो बेसिकली कैपिटलाइजेशन तब सीज हो जाती है व्हेन एसेट इज रेडी फॉर यूज। सो टिल द डेट एसेट इज इन प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन वो कॉस्ट आप कैपिटलाइज करेंगे इन कॉस्ट ऑफ एसेट। नेक्स्ट इज AS 15 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब देखिए इन प्रैक्टिकलिटी ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो एप्लीकेबल होगा उन एंटरप्राइजेस पे जो अपने एम्प्लॉयज को किसी तरीके का फंड प्रोवाइड करती हैं, यानी कि आप कह सकते हैं ग्रेजुटी फंड इज देयर, प्रोविडेंट फंड इज देयर, लीव इनकैशमेंट इज देयर और सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट फंड आर देयर। सो एम्प्लॉय बेनिफिट हमें ये बताता है दैट आपने कौन से मेथड के अकॉर्डिंगली यानी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कौन से मेथड के अकॉर्डिंगली इनकी प्रोविजनिंग जो आप फंड प्रोवाइड करवाने वाले हैं अपने एम्प्लॉयज को वो बनानी है। सो ये ज़्यादातर जैसे स्कूल्स हो गए या लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस हो गई या मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई या कुछ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज भी हैं जो लार्ज स्केल पे काम करती हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को ये बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। तो बेसिकली जब हम इसका क्रक्स पढ़ेंगे तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स जो होते हैं दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। जब एम्प्लॉय ने अपनी सर्विसेज रेंडर कर दी शॉर्ट टर्म बेनिफिट को आप एक्सपेंस ही ट्रीट करेंगे। लेकिन पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट पोस्ट एम्प्लॉयमेंट में क्या आ जाएगा, आपके ग्रेजुटी फंड आ गए, आपकी लीव इनकैशमेंट्स आ गई, आपके प्रोविडेंट फंड्स आ गए। एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड एज कंट्रीब्यूशन ड्यू, आप उसको एक्सपेंस कब रिकॉग्नाइज करेंगे, जब आपका कंट्रीब्यूशन ड्यू हो जाएगा। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में डिफाइंड बेनिफिट प्लान, अब दो तरीके के प्लान्स हैं। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान जिसमें एम्प्लॉयर का हिस्सा जो है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो पहले से ही डिसाइडेड होता है दैट इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इफ दे आर रिटायरिंग आफ्टर दिस मच ऑफ ईयर्स, दिस नंबर ऑफ ईयर्स, तो वो पहले से ही एक पोर्शन जो है एज अ रिजर्व एज अ प्रोविजन
बना के रखते हैं, किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट कर देते हैं। सेकंड प्लान इज डिफाइंड बेनिफिट प्लान, या जहां पर इम्प्लॉय का जो बेनिफिट है, इम्प्लॉय को मिलने वाला बेनिफिट है इन फ्यूचर, वो डिफाइंड होता है, लेकिन इम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट डिफाइंड, वो अनसर्टन होता है। वो डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट जो है वो फ्यूचर में इम्प्लॉय को हम पे करने वाले हैं। अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट एंड टर्मिनेशन बेनिफिट अकाउंटेड ऑन सिमिलर बेसिस। सो बेसिकली यहाँ पर भी लीवरेज दी गई है स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को, दैट आप एस्टिमेशन बेसिस पे प्रोविजनिंग कर सकते हैं। अदरवाइज जो AS15 है वो ये कहता है दैट डिस्काउंटिंग फैक्टर शुड बी देयर, क्योंकि आप फ्यूचर में देने वाले बेनिफिट की प्रोविजनिंग आज की डेट में कर रहे हैं, तो आप डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाएंगे, यानी कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और प्रेजेंट वैल्यू को आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे कि आपके पास इन फ्यूचर जो है वो लैक ऑफ फंड्स ना हो। ठीक है, यहाँ पर ये लीवरेज जो है वो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को दी गई है, दैट इफ डिस्काउंटिंग फैक्टर इज नॉट अवेलेबल, इफ प्रेजेंट वैल्यू एनालाइज करना इज नॉट पॉसिबल, तो आप एस्टिमेशन के बेसिस पर भी AS15 जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको अप्लाई ना करने का जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा दैट एक साइड पे आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, आप लाइबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि आप प्रोविजनिंग क्रिएट नहीं कर रहे हैं, और दूसरी साइड पे आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दैट विल नॉट बी अपेयरिंग एज अ true and fair view. So basically they will not be giving true and fair view to the users of financial statement. So basically this accounting standard need to be followed. AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट को कवर करता है, जिसमें ये कहा गया है अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उनको आप अपनी बुक्स में कैसे लेके आएंगे। जब आप उनको अक्वायर करते हैं तो इनिशियल रिकॉग्निशन आप करेंगे, अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। लॉन्ग टर्म के केस में कॉस्ट अनलेस डिक्लाइन इज अदर देन टेम्पररी। अब यहाँ पर कह रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के केस में आपने कॉस्ट पे एनालाइज करना है अनलेस डिक्लाइन इज अदर देन टेम्पररी। अब इसका मतलब क्या है, दैट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको लगता है दैट डिक्लाइन आने वाले समय में इज परमानेंट, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो राइज नहीं होगी, डिक्लाइन इज परमानेंट, तो आप उसको फेयर वैल्यू पे रिड्यूस करेंगे, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को आप कॉस्ट से उठा के फेयर वैल्यू में लेके जाएंगे। ओके, सो यही जो डिफरेंस है वो करंट और लॉन्ग टर्म में है। करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे डिटरमाइन करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आपको लग रहा है डिक्लाइन इज परमानेंट तो आप फेयर वैल्यू पे कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे। डिविडेंड या इंटरेस्ट आप अप्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करते हैं। बोनस शेयर्स है तो कॉस्ट स्प्रेड ओवर ओल्ड प्लस न्यू शेयर्स, ये AS13 का क्रक्स है। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट AS, दैट इज AS10 PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यहाँ पर सबसे पहले चीज जो डिस्कस की जाती है दैट इज मेथड्स टू बी फॉलोड व्हाइल कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन। वी ऑल नो देयर आर 3 मेथड्स बीइंग प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फर्स्ट इज WDV, सेकंड इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड थर्ड इज नंबर ऑफ आवर्स मेथड। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स मेथड जो है वो ज्यादातर यूज होता है जहां पर हम प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली चलते हैं, जैसे कि कोल माइंस हो गए या थिएटर्स में जैसे आप नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स के बेस पे डेप्रिसिएशन जो है वो कंप्यूट करते हैं। लेकिन जो मेजरली इन एग्जिस्टेंस या ज्यादा यूसेज में मेथड्स हैं दैट आर SLM एंड WDV, ये हम सबको पता है। नाउ द डिफिकल्टी अराइजेस इन द केस दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेज आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ऑन योर फिक्स्ड एसेट्स ऑन यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, but we are charging depreciation in our book of accounts on the basis of income tax rate prescribed. Okay, so there is the reason of difference here. The difference lies that आप अपनी बुक्स को बुक्स में फिक्स्ड एसेट को जो डेप्रिशिएट कर रहे हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स रेट प्रिस्क्राइब्ड, बट होना कहना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली, यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंगली। सो बेसिकली बीइंग एन ऑडिटर इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू डिस्क्लोज दिस फैक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट enterprises has been charging depreciation on income tax rate prescribed rather than charging depreciation on the basis of useful life of the asset. If accounting standard would have been followed by the enterprises then the financial result would be somehow different. So ये चीज आपको disclose करना जरूरी है। If the difference could be quantified you can mention the figure in the tax audit report. If that is not quantifiable then you can skip the quantification wala factor. Okay, so basically the thing is when enterprises is in existence for so many years then it is practically difficult for the auditor to analyze and compute the original cost and then
make a reverse calculation to determine the depreciation on useful life of asset, then you just simply disclose this fact in the financial statement in your tax audit report. नेक्स्ट इज एएस 9, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ द बुक्स आर प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस और हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं. इंटरेस्ट को टाइम बेसिस पे, रॉयल्टी को अक्रूवल बेसिस पे, डिविडेंड को व्हेन राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश्ड. एंड आपको गुड्स जब आप सेल कर रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स के केस में आपको उसको रिकॉग्नाइज करना है अपनी बुक्स में. when property in good is transferred and risk and rewards pass, यानी कि जब ये तीनों चीजें हो जाती हैं, प्रॉपर्टी भी पास हो गई, ट्रांसफर हो गई, रिस्क भी ट्रांसफर हो गया, रिवॉर्ड्स भी पास हो गए, and you are certain about the collectability and measurability of the amount, you do not have any doubt, you do not have any idea that okay this amount is going to be banded in the future, तो उस केस में आप इसको रेवेन्यू के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लेंगे. ये एएस 9 कह रहा है. ओके, नेक्स्ट इज एएस 5 जो हमसे बात करता है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड. एएस 5 में हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा प्रिस्क्राइब किया गया है, जिसमें हम एक्सेप्शनल आइटम्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के बारे में डिस्कस करते हैं. एक्सेप्शनल आइटम्स वो आइटम्स हो जाती हैं जो कि रेगुलर फेज में रेगुलर एक्टिविटीज के तौर पे नहीं होती, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वी ऑल नो दैट अर्थक्वेक, फ्लड्स वगैरह एक्सेट्रा की वजह से जो हमारे बिजनेस में लॉस या हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला है, दैट वुड बी कवर्ड अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. प्रायर पीरियड आइटम की अगर हम बात करें तो दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन ओमिटेड ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस इन द प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल या उससे पिछले साल कुछ ऐसी एक्सपेंसेस थी या कुछ ऐसी इनकम्स थी जो कि हमसे ओमिट हो गई हैं, जो हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं कर पाए, उनको हम करंट प्रीवियस ईयर में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रायर पीरियड के नाम से सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे. दैट सेज एएस 5. नेक्स्ट पोर्शन इज चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, यानी कि अगर आपकी एंटरप्राइजेस ने पिछले साल के कंपैरेटिवली इस साल में अपनी पॉलिसीज में कुछ चेंज किया है, तो आपको बीइंग एन ऑडिटर अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में उसको भी डिस्क्लोज करना जरूरी है. एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज कुड बी ड्यू टू चेंज इन स्टैट्यूट और ड्यू टू द रीजन दैट इट वुड रिजल्ट इन बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन ओनली यू कैन चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसीज. Next, we will be moving toward AS4, contingencies and event occurring after balance sheet date. It again majority times happens in corporate entities because they have to adopt the financial statement in AGMs or meetings आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ बैलेंस शीट. सो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में ये वाली चीजें बहुत कम कवर होती हैं, लेकिन अगर कुछ अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में हो जाए तो कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट इज 31 मार्च के बाद वो इवेंट अकर हुआ है, लेकिन बिफोर परफॉर्मिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट वो इवेंट अकर हुआ है, तो उसको हम कहेंगे इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट. अब ये एएस क्या करता है, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है इन इवेंट्स को, एडजस्टिंग इवेंट्स एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स. नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स वो होते हैं जिनकी आपको प्रायर नॉलेज नहीं है, यानी कि 31 मार्च को आपको नॉलेज नहीं थी दैट इन फ्यूचर ये चीज होने वाली है, वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा. जैसे सडनली मई या जून में आपकी एंटरप्राइजेस में फायर ब्रोकआउट हो जाती है, यू डू नॉट हैव प्रायर नॉलेज दैट ओके फायर अकर होगी, that is non-adjusting event. Adjusting events that you have prior knowledge, you have certain idea, you have certain estimation in advance that this event can happen in the future. So adjusting events जो हैं प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशंस एग्जिस्टिंग एट बैलेंस शीट डेट, इसको आप अपने अकाउंट्स में एडजस्ट कर सकते हैं. लेकिन नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स अगर हैपन हो रहे हैं तो आपको सिर्फ उसको डिस्क्लोज करना है, यू कांट एडजस्ट दोज इवेंट्स इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिगर्स. ओके, अब यहाँ पर हम चलेंगे AS2 पे. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट AS विच टॉक्स अबाउट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. वी ऑल नो दैट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में हमें बताया जाता है दैट दोज गुड्स विच आर हेल्ड फॉर सेल पर्पस विच आर यूज्ड फॉर सेल पर्पस, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री, जो आपका स्टॉक है. अब ये एस हमें कहता है सबसे पहले कि आपको कॉस्ट में क्या इंक्लूड करना है. ठीक है, तो द वन लाइनर अगर हम बात करें AS2 की, दैट इज कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर. ठीक है, तो इसके लिए हमें कॉस्ट भी पता होनी चाहिए, एनआरबी भी पता होना चाहिए. कॉस्ट AS2 कहता है कि आप इसमें परचेज कॉस्ट भी इंक्लूड करेंगे, कन्वर्जन कॉस्ट. कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है ओवरहेड्स एक्सपेंसेस जो आपको ट्रांसफॉर्म करने में लगे हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स, तो उसको हम कन्वर्जन कॉस्ट बोलेंगे. एंड अदर कॉस्ट टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, कोई भी ऐसा खर्चा जैसे कैरेज इनवर्ड है या फ्रेट है जो आपको
उस एसेट को अपनी प्रेजेंट लोकेशन में लाने पे करना पड़ा है, उसको भी आप कॉस्ट की अमाउंट पे ऐड कर देंगे। लेकिन उस कॉस्ट में आप एबनॉर्मल वेस्टेज, स्टोरेज कॉस्ट या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है वो ऐड नहीं करेंगे, वो एक्सक्लूजन की कैटेगरी में रहेंगे। अब बात करें अगर एनआरबी की, नेचुरलाइजेबल वैल्यू, यानी कि अगर हम उस प्रोडक्ट को, उस इन्वेंट्री को, उस स्टॉक को मार्केट में जाके रियलाइज करते हैं, जिसको कहते हैं एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, यानी उस इन्वेंट्री की एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या होगी, उसमें से लेस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। अगर हम उस इन्वेंट्री को मार्केट में बेचते हैं रादर देन कंज्यूमिंग इट और यूजिंग इन आर प्रोडक्शन प्रोसेस, उसको बेचने के लिए अगर मुझे किसी को ब्रोकरेज या कमीशन देनी पड़ी है, दैट इज एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से हम एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट को माइनस करेंगे और जो फिगर आएगा दैट वुड बी एनआरबी। सो आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू करना है, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। तीसरी चीज जो AS2 हमें बताता है दैट आप कौन से मेथड यूज कर सकते हैं टू वैल्यू द क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st मार्च ऑफ एवरी ईयर। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जो कि बहुत कॉमन है, एंड सेकंड इज वेटेड एवरेज मेथड। सो बेसिकली प्रिस्क्राइब्ड या रिकमेंडेड मेथड इज वेटेड एवरेज मेथड बिकॉज इट रिप्रेजेंट बेटर रिजल्ट्स। ये है AS2। नेक्स्ट इज AS1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब देखिए जो AS1 है वो हमें ये बताता है दैट आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डिस्क्लोज करना है, यानी आपको अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में या आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी है वो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो आपने फॉलो करी है इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब अगर आप लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज नहीं कर रहे हैं इन करंट प्रीवियस ईयर, यू नीड नॉट टू मेंशन सेपरेटली, बट इफ देयर आर सम चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड दोज अकाउंटिंग assumptions which are very much obvious that a going concern, consistency और accrual, तो आपको उन चीजों को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर चेंज करनी पड़ रही हैं अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज ड्यू टू चेंज इन लॉ, चेंज इन स्टैट्यूट, और those accounting policies would result in better presentation of financial statement, तो आपको ये फैक्ट डिस्क्लोज करना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। So I have tried to cover the relevant and applicable accounting standards which could be applied by all the enterprises in very few minutes. Uh, Hopefully this video will help you out, and if any of you have any of the doubts regarding the accounting standards, तो आप मुझे DM कर सकते हैं या मेरे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। The crux of this video is that while performing tax audit for financial year 24-25, you being an auditor will be placing a qualification or will be mentioning a disclosure point regarding the procedure followed इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि आपको इस क्वालिफिकेशन या इस डिस्क्लोजर को, इट नीड नॉट टू बी क्वालिफिकेशन ऑलवेज, इट कैन बी एम्फोसिस ऑफ मैटर, पैराग्राफ, एंड इट कैन बी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एज वेल, बट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द क्वेरी again. So this is the list of the accounting standards which are applicable on most of the एंटिटीज। इसके अलावा भी बहुत से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपके एंटरप्राइजेस पर एप्लीकेबल हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। इफ यू कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग विद श्रीजी टेक्स सॉल्यूशंस। नमस्कार।